Good morning, students. Today we discuss about the endothermic and exothermic oxidation and reduction. But in last video we were discussing about the combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction. This is the most important reaction, and one of them will be included in your 12th board examination, 100%. That is fact. So in last video, we were discussing about the combination reactions. What is the combination reaction? When two and more than two reactant react together and form the product. That means addition of the two reactants and get converted into the product. That is known as the combination reaction or addition reaction or direct combination reaction, and it is also known as the synthetic reaction. Okay. Now second one is decomposition reaction. Decomposition means when any one reactant decomposed into the two and more than two products. That means one reactant decomposed into two and more than two products. That is known as the decomposition reactions. And there are three types of the decomposition reaction. First one is thermal decomposition. Second, photolysis. That is and the third one is electrolysis. Thermal decomposition. What is the thermal decomposition? When any reactant decomposed due to the thermal heat, that is known as the thermal decomposition. And second one is photolysis. What is the photolysis? When any reactant decomposed by the using of the photolights. Photolights means sunlight. That means any reactant decomposed through the sunlight, that is known as the photolysis. And electrolysis, where any reactant decomposed through the electric current, that is known as the electrolysis. Okay. Now, third one, displacement reaction. That is also known as the substitution reaction. Displacement reaction, when any two reactants react together or one reactant react together, that means the one reactant displaces another reactant during the reaction, that is known as the displacement reaction. There are two types of the displacement: single substitution reaction and dual substitution reaction. Single substitution means one reactant substitute one element of another substance and get converted into their salt. That is known as the single substitution reactions. One example, like as जो लास्ट वीडियो में एग्जांपल लिया था वही ले रहे हैं अपन. Ferrous react with CuSO4, so get converted to FeSO4 plus Cu. So look here, ferrous यानी कि आयरन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट, यानी कि एक सब्सटेंस में एक एलिमेंट ने इस पूरे सब्सटेंस से सिर्फ कॉपर को डिस्प्लेस किया है. सो ऐसे रिएक्शन को हम लोग सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इन डुअल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वेल एग्जांपल ले लेते हैं. कोई AgCl रिएक्ट विद KCl गेट कन्वर्ट इनटू KBr, या यहाँ पर AgNO3 ले लेते हैं, ये सही रहेगा. AgNO3 react with KCl. Okay, so potassium and silver substitute to each other. ये दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? AgCl बन जाएगा और यहाँ पर KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट. ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए. Ag की जगह पोटेशियम आ गया, पोटेशियम की जगह Ag आ गया. यहाँ पर दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए. ऐसी रिएक्शन को डुअल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, ये हम लोग पिछली क्लास में स्टडी कर चुके हैं, ओनली रिकॉल कर रहे थे इस पूरे प्रोसेस को. आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. लेट अस डिस्कस अबाउट द exothermic reaction. What is the exothermic reaction? Exothermic reaction means the reactions in which heat is evolved. The reactions in which heat is evolved during the reaction. ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व होती है उसे क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन.
फिर से सुनो, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और इससे जो हीट शो करना है वो प्रोडक्ट में प्लस सिंबल से शो करना है। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने ग्रेफाइट लिया, इसको कार्बन भी कह सकते, कार्बन सिंबल ग्रेफाइट और डायमंड सिंबल सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। इसके बारे में हम लोग आगे चैप्टर्स में उसमें डिस्कस करेंगे। सो ग्रेफाइट burn with oxygen. Graphite react with oxygen and get converted into carbon dioxide. Carbon dioxide and evolve heat (94 Kelvin). Okay, graphite, oxygen react together and get converted to carbon dioxide and 94 calorie energy. Okay, and this reaction is known as the exothermic reaction. Why this is known as the exothermic reaction? Due to the evolution of the 94 calorie energy. अब जो एनर्जी इवॉल्व होगी उसे आप प्लस साइन से शो करेंगे। फिर से याद रखिएगा, अगर कहीं माइनस साइन है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगी, प्लस सिंबल लगा है तभी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। इज दैट क्लियर? Second one is endothermic reaction. Endothermic reaction. What is the endothermic reaction? Heat is required when two reactants or two and more than two reactants react together, and during the reaction heat is absorbed by the reaction, that is known as the endothermic reaction. ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिक्वायर्ड एब्सॉर्ब की जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। सपोज हमने कार्बन प्लस सल्फर रिएक्शन कराया, दोनों को कार्बन सल्फर रिएक्ट टुगेदर, और ये दोनों रिएक्शन करके कार्बन डाइसल्फाइड बनाएंगे। दैट मीन द कार्बन एंड सल्फर रिएक्ट टुगेदर एंड गेट कन्वर्टेड टू कार्बन डाइसल्फाइड, दैट इज नोन एज द कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइऑक्साइड एंड हियर कार्बन डाइसल्फाइड, एंड यहां पर हीट रिक्वायर्ड होगी कैलोरी। ओके, यहां माइनस सिंबल शो कर रहा है। माइनस सिंबल का मतलब है हीट एब्सॉर्ब की जा रही है, यहां प्लस सिंबल का मतलब हीट रिलीज की जा रही है। तो ओवरऑल आपके दिमाग में एक चीज बैठ गई होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब होगी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी। इतना सा ही प्रोसेस है। नेक्स्ट अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को स्टडी करते हैं। सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। Oxidation and reduction. So what is the oxidation and reduction? Okay, oxidation. What is the oxidation? So आपने सिंपल सी 9th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी होगी ऑक्सीडेशन की, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज होगी। 9th क्लास आपने आज सीखा होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर आप कह सकते हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। ओके, एक टर्म में और डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन इंक्रीमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। यहां पर जस्ट अपोजिट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज द रिडक्शन। So there are two process, oxidation and reduction. चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में देख लेते हैं। सपोज मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, Na plus HCl convert into NaCl plus H2। ओके, ये एग्जांपल। सपोज मैंने यहाँ पर मेटल लिया, मेटल को एसिड से रिएक्शन कराया हाइड्रोजन गैस। समझने वाली बात ये है, यहां पर वो क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कैसे पता?
तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन रिमूव हो रही है या एक्सेप्ट की जाए। अभी देख रहे हैं आप लोग अच्छी तरह से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किस में आता है? ऑक्सीडेशन में आएगा, रिडक्शन में आएगा, ऑक्सीडेशन। पहला मेथड है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पहचान। दूसरा आपको एक टर्म बता रहे हैं यहाँ पर, अगर कोई एलिमेंट सिंगल लिखा हुआ है तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर 0, या फिर यहाँ देखिए सोडियम Na है और यहाँ पर NaCl हो गया। यहाँ पर इसकी अगर हम बैलेंस देखें तो +1 हो रही है। जब सिंगल एलिमेंट होता है सोडियम का तो वहां 0 होता है। इंक्रीमेंट हो रहा है यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। +1 कैसे बना होगा? जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया होगा तब यहाँ पर +1 आएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो -1 आएगा। मैंने अभी आपको बताया कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है। सिंपल सी टर्म में आप देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तब भी इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। एक तीसरी डेफिनेशन की, चौथी डेफिनेशन सॉरी हम आपको बताते हैं, फोर्थ डेफिनेशन। फोर्थ डेफिनेशन क्या है? इफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज एड या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देखो ये Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? यहाँ पर Cl इसके साथ ऐड हो रहा है तब बीच को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो हमने आपको फोर डेफिनेशंस क्लियर की आपको यहाँ पर। अब यहाँ पर जस्ट अपोजिट चलते हैं रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज द रिडक्शन। सो रिडक्शन के लिए रिडक्शन के लिए अब यहाँ पर देखो रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऐड हो रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, दोनों प्रोसेस है, वाटर बन रहा है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल H2 plus O2 चेंज इनटू H2O। इन दो प्रोसेस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, वाटर बन रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस में पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इस ऑक्सीजन में, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कह सकते ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। अब यहाँ देखिए ये 0 से यहाँ +1 हो रहा है और यहाँ ये -2 0 से हो रहा है। यहाँ दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। फिलहाल एक एग्जांपल लेते हैं रिडक्शन का, जिसमें प्योर रिडक्शन हो रहा है। सपोज हमने KBr लिया प्लस Cl2 चेंज इनटू HgCl2 प्लस SnCl2 चेंज इनटू Hg2Cl2 प्लस SnCl4। ओके, HgCl2 SnCl2 चेंज इनटू Hg2Cl2 प्लस SnCl4। इस रिएक्शंस में देखेंगे HgCl2 और SnCl2 में कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर ना तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है। आप ये थ्योरी थी पुरानी, ये थ्योरी फेल हो गई। अब क्या करेंगे? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज द रिडक्शन। अब यहाँ देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है, यहाँ पर SnCl4 बन रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ इसकी वैलेंसी +2 है, यहाँ कितनी हो रही? +4 है। अब यहाँ +2 से +4 हो रही, इंक्रीमेंट हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं टर्म में इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। यहाँ पर +2 है और यहाँ पर क्या हो रहा है? +1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ओके, अब डिस्कस कर लेते हैं ऐसी रिएक्शंस जहां पर दोनों चीजें हो रही हैं। ऐसी चीजें जहां पर दोनों चीजें हो रही हो उन्हें क्या कहते हैं? ऐसी रिएक्शन भी आप लोगों ने देखी दो कि जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा था और रिडक्शन भी हो रहा था। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें दोनों रिएक्शन होती है उन्हें हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शंस इन व्हिच
oxidation and reduction take place, that is known as the redox reaction। कोई सिंपल सी रिएक्शन ले लेते हैं जो redox रिएक्शन में आती है। तो सपोज मैंने अभी यहाँ थोड़ी देर पहले रिएक्शन लिखी थी HgCl2 प्लस SnCl2 चेंज इनटू Hg2Cl2 प्लस SnCl4, Hg2Cl2 प्लस SnCl4, ओके, दैट इज नोन एज द स्टेनस क्लोराइड। इसका नाम स्टेनस क्लोराइड है, इसको स्टैनिक क्लोराइड कहते हैं, इसको मर्क्यूरस क्लोराइड कहते हैं, इसको मर्क्यूरिक क्लोराइड कहते हैं। सो मर्क्यूरस क्लोराइड कन्वर्ट इनटू मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड स्टेनस क्लोराइड कन्वर्ट इनटू स्टेनिक क्लोराइड। अब देख लेते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। स्केलेटन फॉर्म में लिखेंगे इस रिएक्शन को, तो यहाँ पर Hg+2, आपको पता है 9th क्लास में क्रिस क्रॉस मेथड पाया था, ये वैलेंसी यहाँ जाती है Hg+2, यहाँ पर इसकी वैलेंसी +2 हो जाएगी, तो Sl+2 कन्वर्ट हो रहा है इसमें, देखो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, Hg+1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये 4 वैलेंसी इसके हेड पर जाएगी, तो Sl+4 हो जाएगी। आपको दिख रहा है, अभी मैंने थोड़ी देर बताया कि एक टर्म आपको याद रखना और लाइफ टाइम ये यूज होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, यानी कि इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीमेंट या डिक्रीजमेंट ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज द रिडक्शन। देखो अगर इंक्रीज हो तो ऑक्सीडेशन, यहाँ +2 से +1 हो रहा है और यहाँ +2 से +4 हो रहा है, +2 से +4 इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देखो +2 से +1 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओके। इसी में हमें एक टॉपिक और क्लियर कर रहा है, यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन तो समझ में आ गया आपको, ऐसी रिएक्शन जिनमें दोनों प्रोसेस हो, ऑक्सीडेशन की हो, रिडक्शन की हो, ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। बस 2 टॉपिक इसमें और क्लियर करना बाकी है, तो आपका ये पूरा टॉपिक कंफर्म हो जाएगा। पहला क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहला क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। एक है रिड्यूसिंग एजेंट। इनको अपन ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। कुछ बुक्स में यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग की जगह ऑक्सीडेंट लिखा मिलेगा, ओके। एक ही बात है, इसको क्या बोलेंगे, रिडक्टेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट एक ही बात है, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट एक ही बात। अब इनको डिस्कस करते हैं, होते क्या है ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो इससे पहले थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे, जैसे कोई ट्रैवल एजेंसी है, गाड़ी वाला है, तो वो क्या करता है, कभी भी खुद ट्रैवल नहीं करता, ट्रैवल करवाता। समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रैवल एजेंट कभी ट्रैवल नहीं करता, वो ट्रैवल करवाता। ठीक उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि दो सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस, दैट इज नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग